Okay, so we'll start from the prayers. You can also recite after me. Om Ajnanatiminandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Namo Acharya Padaya Nitaya Kripa Padayane और कथाधामने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर एक साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare. So welcome all for this discussion. So today is Pap Mochani Ekadashi. Okay. So and the verse is 2.62 as you see on your screen. So कोई इस श्लोक को पढ़ सकता है क्या? 2.62 कोई one of you can read it. वीडियो में आइएगा तो बेटर रहेगा. डिस्कशन तो वीडियो से होगा ना, फेस टू फेस, अदरवाइज पता कैसे चलेगा आप लोग है या नहीं. Yes, bro. हाँ, पढ़िए इसको थोड़ा. ध्यायतो विषयं पुंस्तो संगस्तेतु प्रजायते संगात् संगयते कामो कामत् क्रोध प्रजायते. ओके, थैंक यू सुप्रतीक को. अब कोई सिनोनिम्स पढ़ सकता है? ध्यायतो anyone of you can read. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attempts, ऊपर चला गया. From such attachments, lust develops, and from lust, anger arises. Okay. So, purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jaguru Srila Prabhupada ki jai. One who is not Krishna conscious is subjected to material desire while contemplating the objects of the senses. The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects. And the holy method to get out, and the only method to get out of this puzzle of material existence, is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi, but Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned verses of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment. In the association of the Lord, that is the secret of success. One who is not, therefore, in Krishna conscious, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desire. So यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ रहा है ध्यायतो विषयाम पुंसा. स्टार्टिंग इससे हो रहा है, मीन्स कंटेम्पलेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस. सो आप लोग को क्या लगता है सेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है बताइए. लेट्स हैव अ डिस्कशन जस्ट फॉर 30 minutes. प्रभु चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक. प्लीज रिपीट सुप्रतीक प्रभु, नॉट क्लियर. यस प्रभु, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वक है. अच्छा, आई है, एयर है, नोज है, स्किन है,
हाँ, these are the senses, bro. These are the senses. Yes, senses. Sense object. I am asking here. हाँ, It is written object of the senses. What are sense objects? Uh, विषय वस्तु क्या है? कोई बोल सकते हैं? कोई भी विषय वस्तु क्या है? अरे विषय वस्तु क्या है आप लोग बता सकते हैं? सेंस ऑब्जेक्ट बताइए. तो आई का तो सेंस सब्जेक्ट है देखना. यस, सेंस उसको इलेबोरेट करते हैं. सेंस ऑब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग विच वी कैन परसीव बाय आवर सेंसेस, है ना. कोई भी हाँ, चीज, हाँ. जैसे ये बॉटल, दिस इज सेंस ऑब्जेक्ट. और ये कान का जो ये एयर हाँ, होता है उसका सुनना. सुनना. यस, इस एवरीथिंग हैज सेंस. दिस पेन इज आल्सो सेंस ऑब्जेक्ट. दिस मोबाइल फोन इज आल्सो सेंस ऑब्जेक्ट. सो सेंस ऑब्जेक्ट. नोट्स का है स्मेलिंग. यस, सो वी हैव ऑल अराउंड अस सेंस ऑब्जेक्ट्स. हम लोग के चारों तरफ सेंस ऑब्जेक्ट्स भरा पड़ा है. तब बोला जा रहा है यहाँ पे कि उस पर कंटेम्पलेट करना है. अब बताइए, बोला जा रहा है कि उस पर कंटेम्पलेट करने से क्या होता है, उसके प्रति आसक्ति आ जाता है. मतलब हम लोग सेंस ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं. अब ये कैसे पॉसिबल है कि जिस चीज़ से घिरे हुए हैं उससे उस पर विचार नहीं करना. मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है, मतलब जिससे हम लोग घिरे हुए जिस चीज़ से, उस पर विचार कैसे नहीं करेंगे. सपोज टेक अ वर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन? क्या लगता है इंद्रिय तृप्ति क्या है? यस प्रीतम प्रभु, शिवम कश्यप प्रभु, राहुल प्रभु बता सकते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? इंद्रिय तृप्ति क्या है बताइए. आप लोग अभी अलग अलग जगहों पे हैं, तो आपके हिसाब से सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है बताइए. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. बताइए, अपना अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं ना. गलत हो या सही हो बोलिए. यह शिवम प्रभु, आशीष प्रभु बोलिए. हाँ, और जैसे कि तो खाने पीने का चीज, कुछ भी बाहर का खाना अट्रैक्ट करता है बहुत बार. हम्म, ये हो गया. और अच्छा. और सेंस ऑब्जेक्ट में मैं तो ये सब भी रखता हूँ, जैसे कि सुबह उठने का मन नहीं करता है तो थोड़ा और प्लेजर के लिए थोड़ा और सो जाते हैं, 1 घंटा और सो जाते हैं. ओके. और इलिसिट रिलेशन विद अदर वुमेन प्रभु, Okay. दूसरी महिलाओं के प्रति गलत आकर्षण को ठीक है, ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है. राहुल प्रभु, आप क्या सोचते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? प्रभु काम इच्छा जो होता है ना, वो हमेशा मतलब ह्यूमन बीइंग को मतलब कुछ ना कुछ चीज में इंगेज करके ही रखता है. ओके. हाँ, कुछ ना कुछ में इंगेज करके रखता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम लोग आएंगे. कुछ ना कुछ में इंगेज करके रखता है. यस अमित प्रभु बोलिए. सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ऑल अबाउट प्रभु एनीथिंग which is beyond Krishna consciousness, it's sense gratification. हाँ, ये एक डेफिनेशन हो गया. सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है, बट एक वर्ड में अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो ये होता है कि कुछ भी ऐसे चीज़ की इच्छा रखना या करना जो कि कृष्णा से अलग है. एनीथिंग विच इज़ अबाउट कृष्णा एंड विच इज़ फॉर मी नॉट फॉर कृष्णा इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन. उसमें उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे. समझ में आ रहा है ना. सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स एनीथिंग विच वी आर डूइंग फॉर आवर सेल्फ नॉट फॉर कृष्णा. सो ये आ जाता है. तो राहुल प्रभु बोले कि उसमें फंसे रहते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा. लाइक वो पॉइंट बोले थे कि काम वासना जो है मतलब किसी न किसी चीज़ में लगे ही रहता है. ऐसा क्यों है? तो मतलब मान लीजिए, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं इस श्लोक में प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि तब सब कुछ छोड़ दीजिए. मतलब जो आसपास की वस्तुएं हैं, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है, उसको त्याग दीजिए क्या? उसको छोड़ दे क्या? मतलब सेंस क्या, मतलब कार में घूमना या फिर अच्छा खाना खाना या फिर बड़े बड़े मतलब चीज़ों, मतलब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, घड़ी पहनना, सब छोड़ दे क्या? क्या लगता है हिमालय पे जाके हम लोग बाबा बन जाए?
सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, क्या प्रभुपाद जी ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु, वैसा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको रखना है, बट अपना जो मतलब कृष्ण कॉन्शियस ये है उसको कंटिन्यू रखना है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा प्रसाद आया मान लीजिए और आप देखें वाह क्या प्रसाद है, ठीक है, और एक कार गया आपके बगल से, क्या सुंदर कार है, अच्छा एक लड़की ही बगल से गुजर गई, वाह, मतलब तिरछे नजर से उसको देखा, तो क्या मतलब ये सब को देखना गलत है क्या? मतलब देखना बंद कर दे, आंख बंद कर दे, या फिर सेंसेस को मतलब नील कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, आंख बंद कर लेते नहीं हैं, नहीं जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, तो क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं प्रभु, हम लोगों का जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन को कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो मतलब हम लोग सुनते आ रहे क्लास में, मतलब इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आते हैं, चलिए, मतलब सुनते आ रहे, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है, तो आप रोड पे चल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, इधर समोसा छन रहा है, एकदम गरम गरम निकल रहा है, और आपको पता है कि हम लोग भक्त हैं, हम लोग 4 प्रिंसिपल ब्रेक नहीं कर सकते, हाँ यस ब्रो, आ रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं आप लोग, थोड़ा इसको कंप्लीट करते लाइन को, तो समोसा छन रहा है एकदम गरम गरम, बगल से लड़की गुजर रही है, एकदम सुंदर कार जा रहा है, एकदम बढ़िया कपड़ा है, इवन आपका फेवरेट क्रिकेटर गुजर रहा है, अब क्या लगता है एज अ भक्त, आप लोग डिवोटी है, रोड पे चल रहे हैं एकदम बिंदास चल रहे हैं, अब आप बोलेंगे मैं डिवोटी हूँ, मैं डिवोटी हूँ, मुझे 4 लेग्स फॉलो करना एकदम, लड़की गुजरेगी आँख बंद कर देंगे, ये समोसा का सुगंध आएगा नाक बंद कर देंगे, ठीक है, कुछ अच्छा सुन लिया कान बंद कर देंगे, ठीक है, तो क्या लगता है आपको ये सब हम लोग रोड पे करेंगे तो क्या बोलेगा लोग, या फिर क्या ये सही है, क्या यही करना चाहिए? प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे हैं क्या? क्या लगता है? अब बोलिए 1 by 1, नीतीश प्रभु से स्टार्ट करते हैं, बोलिए। यस नीतीश प्रभु बोलिए आप। हाँ आपका क्वेश्चन आंसर नहीं समझे हम प्रभु, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए हैं इधर। अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे, जो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और आप डिवोटी है, हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले राहुल प्रभु बोले कि हम लोग काम वासनाओं से घिरे हुए, हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए, और इसमें प्रभुपाद जी लिखे हैं, हाँ, अगर हम लोग सेंस ऑब्जेक्ट पर कंप्लेट करेंगे तो उससे हम लोग आसक्त हो जाएंगे, और उससे हम लोग आसक्ति उत्पन्न होगा, और उससे हम लोग को क्रोध आएगा, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन, तो डैट मीन्स रोड पे चल रहे हैं, गरम गरम समोसा छन रहा है, लड़की बगल से जा रही है, कार जा रहा है, तो क्या उस सबके लिए हम लोग समोसा का स्मेल आया तो नाक बंद कर देते हैं, लड़की गुजरी तो आँख बंद कर देते, अच्छा गाना सुनाए तो कान बंद कर देते, तो क्या हम लोग को ऐसा ऐसे करके बचना चाहिए? क्या प्रभुपाद जी ये समझा, ये बोलना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग को हिमालय पे चला जाना चाहिए, सबसे दूर, कुछ नहीं करना है, नो सेंस ऑब्जेक्ट, एकदम मस्त, सबसे बेस्ट ऑप्शन? तो 1 by 1 चलिए हम लोग डिस्कशन लेते हैं, बोलिए शिवम प्रभु, क्या आपका ओपिनियन है इस पे, क्या लगता है यही करना चाहिए? नहीं प्रभु, आँख बंद कर नहीं करना चाहिए प्रभु, अच्छा, नीतीश प्रभु बोल रहे थे, पहले बोलिए। हाँ। बल्कि भक्त के जो संग में रहते हैं, जैसे कोई चीज खराबी है या फिर कोई दवा मान लीजिए खराबी करेगा ये चीज, तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग साधु संग के थ्रू जो काम वासना आखिर क्या होता है, इसका जड़ क्या है, क्यों होता है, उसके बारे में सब कुछ समझ करके, और उसका जो बीमारी है, जैसे काम वासना बीमारी है, उसका सही दवा लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, ये सब चीज समझते हुए तब हमको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ये नहीं जो आप उससे कब तक, अब हर जगह काम वासना, अब तो आजकल में तो आप जानवे करते हैं, हर जगह काम वासना, तो काम वासना का थोड़े ना अथी है, ये तो इनबिल्ट है, हम लोग के अंदर ही ये है, ठीक है, उससे बचने के लिए हम लोग को मेन एसोसिएशन भक्त का संग रहता है, तब ये सब से मुक्ति हो सकता है, नहीं तो अन्यथा फंसा देता है मतलब आप सॉल्यूशन बता रहे कि ये करेंगे तो इससे बच जाएगा, है ना? ठीक है, हाँ, शिवम साधु प्रभु, संघ के सिवा साधु संघ, वैष्णव के कृपा से नहीं हो तो सकता। एक पॉइंट है, साधु संघ के बिना नहीं होगा, तो शिवम प्रभु बताइए कुछ, आपको क्या लगता है ये सही, हम जो मतलब बताए रोड पे चलते हुए आँख बंद करना, नाक बंद करना, क्या यही करेंगे क्या हम लोग, इससे भी कुछ है ऊपर? नहीं, अगर जो चीज गलत है वो हमें पता रहता है कि गलत है, लेकिन अगर उससे डायरेक्टली भागना चाहे तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म में भाग सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वो फिर वापस कहीं आ ही जाएगा, तो बेटर कि अपने आप को व्यस्त रखें एसोसिएशन और लोगों के साथ, फैसिलिटीज बोलना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यस्त, व्यस्त मीन्स एंगेज, और डाइवर्जन, हाँ सेंसेस को चाहिए एंगेजमेंट,
तब हम लोग इंगेजमेंट नहीं दे सकते उन सब चीज़ों से जो चीज़ मना है। तो डैट मीन्स उसको हाथ में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप एक स्टोरी सुने हैं, एक हाथी था, सुने हैं स्टोरी, सुने होंगे मोस्ट ऑफ यू। वो हाथी जाता है बाजार से, पागल तहस नहस सब कुछ कर देता है, ठीक है। पहले दिन कुछ करता है, दूसरा दिन कुछ करता है, तीसरे दिन कुछ करता है। व्यापारी लोग उसको पूरा बोलते हैं अपने हाथी को यहाँ से मत लेके जाओ, ये तुम्हारा पागल हाथी इधर से क्यों लेके जा रहे हो। लास्ट दिन हाथी के मुंह में क्या डाला हुआ, लकड़ी डाल दिया, ठीक है। मुंह में एक बड़ा सा लॉक डाल के उसको ले गया। उस दिन वो हाथी कुछ नहीं किया। अब रिलेट कर पा रहे इससे, रिलेट कर पा रहे, हाँ हाँ क्यों क्यों नहीं किया? वही आप काम में व्यस्त था, डाइवर्टेड था। क्योंकि उसका जो वो जो चीज है वह जो देख रहा था, फ्रूट्स है बाजार में, वो खा रहा था मुंह से, वो है लकड़ी है, मुंह तो एंगेज है ना, माउथ इज एंगेज, हाउ ही विल डू एनीथिंग। मतलब उस सेंसेस के लिए कुछ बचा नहीं ना करने के लिए। दैट मीन्स द बेस्ट वे टू कंट्रोल आवर सेंसेस इज नॉट टू रन अवे फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट बट टू गिव अनदर इंगेजमेंट। ये हम लोग का पहला पॉइंट है, मतलब गिव हायर इंगेजमेंट, परम दृष्टवा निर्वंतन्ते। गिव हायर एंगेजमेंट, हायर टेस्ट, यू विल लिव लोअर टेस्ट। एक जिन का भी स्टोरी आता है। एक बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत तपस्या किया, ठीक है। तपस्या करके वरदान में क्या मांगा, एक जिन जो उसका सारा इच्छा पूरा कर सकता है, जो मांगेगा मिल गया। एक बाबा दिए उसका आशीर्वाद, ओहो ठीक है। जिन आया, बोलिए सरकार क्या करना है। वो बोला ये करो, वो तुरंत करके आ गया। फिर बोले क्या करना है सरकार बताइए। फिर टास्क दिया, फिर तुरंत आ गया। बोला क्या करना है बताइए। फिर तीसरा टास्क दिया, फिर तुरंत आ गया। वो फिर बोला कि भाई अभी कुछ नहीं करना, तुम चले जाओ। बोलता नहीं हमको टास्क दीजिए, हमको कुछ ना कुछ टास्क दीजिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे, ऐसे बोल रहा था। वो डर गया कि भाई क्या करना। वो गया वापस से साधु के पास। तो देखिए देखिए आप जो जिन दिया ऐसा ऐसा बोल रहा है। साधु उसको क्या इलाज दिया, कोई बता सकता है? कोई सुना है स्टोरी? साधु उसको क्या इलाज दिया पता है? बताइए आशीष को, क्या इलाज दिया? हम एक दो वर्जन सुने हैं इसका। हाँ हाँ तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। वैसे मतलब उसको मेनली साधु ये बोलना चाह रहा था कि कुछ ना कुछ काम में उसको ऐसा काम में एंगेज कर दो कि जो रिपीटेटिव हो। जैसे कि एक में बोल दिया था कि कोई हाँ लकड़ी का लॉग है, उसके चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा, यही काम है। एक में बोला था कि पोल बाल है पोल उसको सीधा पोल कर। पे। पोल पे, ठीक है। हाँ लकड़ी जो हाँ भी, हाँ तो उसको बोल दिया कि ठीक है तुम्हें सीट पे चढ़ो उतरो जब तक हम बोलेंगे नहीं। जिन फंस गया। ये जिन की तरह है हमारा सेंसेस है। तो उसको आप नहीं सही एंगेजमेंट देंगे तो फिर क्या होगा, वो आपके मौत का भी कारण बन सकता है। ये हमारा पहला डिस्कशन था, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू गिव इंगेजमेंट विथ राइट पर्पस। तो अभी हम लोग वापस से पॉइंट पे आते हैं। हम लोग बाजार में चल रहे थे, समोसा का सुगंध आ रहा था और लड़की जा रही थी, कार भी चल रहा था। तो आँख नाक कान बंद करेंगे नहीं, वी विल गिव अनदर। तो क्या बताइए, रोड पे चलते हुए समोसा का सुगंध लेना गलत है? बताइए, गलत है। लड़की को देखना गलत है, या कार जा रहा है अच्छा उसके बारे में सोचना गलत है, या फिर अच्छा घड़ी कपड़ा पहना देख रहे आप उसके बारे में उसको देखना या सुनना या सारे इंद्रियों से कुछ गलत है क्या ये सब? अगर गलत है तो हम लोग तो डेली कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं प्रभु। हाँ क्या कैसे बताइए, प्रभु हम बोले इसके लिए बोलिए बोलिए बोलिए। अरे आप लोग दूसरे को जानते, सुप्रतीक प्रभु बोल सकते हैं कुछ, हम लोग आएंगे देखिए सबके ऊपर आएंगे। नीतीश प्रभु सुप्रतीक प्रभु को बोलने दीजिए, वी विल कम टू यू। यस सुप्रतीक प्रभु बताइए। यस प्रभु, वो बोला तो बहुत गलत नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वो जो माने रोड में अगर जा रहा है तो हम लोग को उस टाइम चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करेंगे तो हम लोग भगवान का हाँ नाम में एंगेज हो रहा है। वाह, तो नाम में एंगेज रहना तो वो वाला जो बाहर का जो ये है वो हम लोग का अंदर में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ये है सॉल्यूशन, ठीक है एग्जाम्पल, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। मतलब थोड़ा, मतलब अब रोड पे चल रहे हैं, अब समोसा का सुगंध नहीं लगेगा तो चैंटिंग करेंगे, मतलब ठीक है, वह एक रास्ता हो सकता है। राहुल प्रभु बताइए कुछ, क्या लग सकता है इसमें, क्या हो सकता है? राहुल प्रभु है इधर? हाँ
हाँ प्रभु है। बोले। तो मतलब ऐसा है, हम लोग जो है ना, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हम लोग बद्ध जीव हैं, ओके ठीक है। तो हम लोग का ये जो है, ये हम लोग का टेंडेंसी रहेगा ही ऑलवेज, ठीक है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए ये है, जैसे हमारा पहला तो साधु संघ जैसे बताया गया, जो साधु संघ है। ओके और दूसरा चीज है इसमें जो गुरु का जो आज्ञा है, उस आज्ञा को पालन करना होगा। अगर जब देखेंगे समोसा वहां पर तला जा रहा है, हाँ तो ये सोचना पड़ेगा जो हमारे गुरु ने हमें क्या आज्ञा दी है, ओके ठीक है। और ठीक ये है। एक वैष्णव के लिए चलिए ये क्या अपराध बन आपका रहा है आपका एक पॉइंट ना। हो गया है कि मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि गुरु का क्या गया उसको फॉलो करना है। तो इसका आंसर जो एक वर्ड में है, ठीक है। इसमें क्या गलत है रोड पे चलते हुए ना, इसमें एक गलती है, उसका आंसर इस प्रभुपाद ट्रांसलेशन में ही लिखे। कोई बता सकता है एक वर्ड में, सिर्फ एक वर्ड में इसका आंसर। प्रभु सोच बदलना पड़ेगा। हाँ सोच बदलना पड़ेगा, नजदीक एकदम एक वर्ड और उसके नजदीक में जाइए और जाइए, एक वर्ड जो है चीज वो। हो रहा है ना वो हम देखेंगे, जो भगवान के, ये भगवान के लिए जैसे समोसा तला जा रहा है, एक सोचेंगे वर्ड भगवान को चढ़ा करके पाएंगे। ये भी है, अच्छा है। ये ट्रांसलेशन में लिखे हुए प्रभुपाद, एक वर्ड, ओनली वन वर्ड। कौन सा वर्ड है वो बताइए। यस प्रीतम प्रभु, गेम में आइए। आप गेम में नहीं आ रहे, गेम से बाहर। प्रीतम प्रभु नहीं है लगता है, शिवम प्रभु है गेम में बने हुए, बताइए। ये रियल एंगेजमेंट। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। ये हाँ बोलिए प्रीतम प्रभु, क्या एक कौन सा एक वर्ड है जो इसको गलत करता है। हमको शांत रहना पड़ता है तो। नहीं शांत रहिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं अभी वर्ड बताइए, इसमें ट्रांसलेशन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप इसको गलत प्रूफ करता है। चलिए ठीक है, बोल सकते हैं कोई भी वर्ड आपके इच्छा के अनुसार। ठीक है, अमित प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे, कोई एक वर्ड। अमित प्रभु भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे। हम बोले परपोर्ट तो हम पढ़े नहीं प्रभु ठीक से, ट्रांसलेशन, मतलब बड़ा था आप तो। सुन नहीं रहे बढ़िया से, ट्रांसलेशन बोले पासपोर्ट का बात ही नहीं आकर। हाँ अच्छा, ट्रांसलेशन। एक वर्ड तो है वो जो इसमें। कॉन्टेम्पलेटिंग जो वर्ड है ना जी वो वाला। हाँ एकदम सही बोले। तो रोड पे चल के समोसा का सुगंध लेना गलत नहीं है, लेकिन उस समोसा के बारे में, वो समोसा को आप छोड़ के चले गए, ठीक है 4x फॉलो कर रहे इसलिए आप उसको देखेंगे भी नहीं, आप चले गए। लेकिन जाते जाते बस ये सोच रहे काश ये हम खा पाते, क्या मजेदार चीज था, मजा आता। और ये सोचना ही गलत है। मतलब सेंस ऑब्जेक्ट को यूज करना गलत नहीं है, बट उसको कंटेम्पलेट करना। अच्छा कंटेम्पलेशन से क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं, प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं कंटेम्पलेशन के बाद क्या होता है। कंटेम्पलेट करना गलत है, इसीलिए जब भी हम लोग देखिए, हम लोग बाहर में, हम लोग भक्तों का संग में अभी नहीं है, हम लोग बाहर में है, काम कर रहे हैं। जरूर है, जरूर गारंटीड है कि सेंस ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा ही आएगा, निश्चित है। अब भाग तो नहीं सकते ना, अब भागेंगे क्या, काम छोड़ देंगे। पैसा तो कमाना निश्चित है, घर परिवार को चलाना है, अपने ड्यूटीज को निभाना है। तो फिर उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को संभालेंगे। जहाँ तक हम सुने हैं, अभी जो भी हम बोल रहे हैं वो राधे श्याम प्रभु के लेक्चर, प्रभुपाद के लेक्चर से और महाराम प्रभु जो क्लास में दिए बताया, उसके बेसिस पे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग काम भी करना है, तो फिर बात आता है कंटेम्पलेशन का, विचार बदलना पड़ेगा। कंटेम्पलेट करते किसी चीज़ पे इस तरीके से कंटेम्पलेट करना पड़ेगा कि वो अच्छा हो। जैसे समोसा के बारे में मैंने बोला, बोले ठीक है ये भगवान को ऑफर नहीं, हम कैसे ले सकते, इस पर कंटेम्पलेट नहीं करना कि कितना अच्छा है खाएंगे, मन जाएगा उसके ऊपर, जाएगा ही जाएगा। आप थोड़ी साधु बाबा महात्मा या फिर शुद्ध भक्त हम लोग बन गए कि एकदम जाएगा ही नहीं, मन तो जाता ही है ना। अभी हम लोग बैठे हुए, कोई बगल से पायल का आवाज आएगा तो हम सीधे से क्लास से तिरछा देखेंगे, मन जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। बट उसको एंजॉयमेंट के दृष्टि से नहीं देखना है, यहाँ पे वो मना किया गया है। पहला पॉइंट लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। कंटेम्पलेशन मीन्स थिंकिंग। अच्छा उसके ऊपर कंटेम्पलेट किया, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड का, एक लड़का एक लड़की के बारे में सोचा, थिंक किया। अब उससे क्या होता है, फीलिंग जनरेट होता है। मतलब उसके बारे में सोच रहा है कैसी थी, ऐसे ऐसे, फीलिंग जनरेट होगा। फीलिंग मतलब वो उसको भोग करने, डिजायर टू एंजॉय विदाउट कृष्णा। उसके बाद क्या होगा, अब वो करेगा, विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, देन विलिंग। ये तीन चीज एक साथ आता है, ठीक है। दैट मीन्स सारा
प्रॉब्लम का क्रिएशन कहाँ होता है, कहाँ पे होता है बताइए? ये रूट कॉज क्या है इसका? थिंकिंग पे। हाँ, थिंकिंग में। मतलब प्रॉब्लम उस लड़की में नहीं है, प्रॉब्लम उस खाने में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? थिंकिंग में है ब्रो। ध्यायतो, कंटेम्पलेटिंग में प्रॉब्लम है। हम लोग कंटेम्पलेशन में है। कंटेम्पलेशन में प्रॉब्लम है। तो हम लोग को प्रॉब्लम अब पता चल गया, ठीक है। अभी देखिए सेंस ग्रेटिफिकेशन क्यों नहीं करना चाहिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन का लास्ट स्टेज क्या होता है पता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन का लास्ट स्टेज होता है फॉल डाउन। अगले जीवन में ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है बहुत ही रेयर, वो आप उसको गवा देगा, और ये सबसे बड़ा लॉस होगा इस मनुष्य जीवन का। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का अंतिम स्तर यही है। कैसे? सेंस ग्रेटिफिकेशन से आता है अटैचमेंट। जब आप सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कितना का एक्सपीरियंस है कि हम कुछ अगर इंजॉय करते हैं तो उसके बारे में, उसको इंजॉय करने के बाद भी सोचते हैं वो कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। बताइए, लगता है कि नहीं? अटैचमेंट हो जाता है ना? ठीक है। अटैचमेंट के बाद क्या होता है? उसको और भोगने का इच्छा होता है, डिजायर। एक बार किया और करने का इच्छा करेगा, है कि नहीं? जैसे घी में आग डालना या फिर आग में घी डालना, है ना? आग में घी डालते हैं, आग बढ़ जाता है। डिजायर के बाद क्या होगा? डिजायर फुलफिल नहीं होता है। आप एक और है, डिजायर के बाद दो चीज आते हैं, एक फुलफिलमेंट हो गया, एक फुलफिल नहीं हुआ। फुलफिल नहीं होता है तो क्या होता है? अगर किसी आदमी को वो जो चाहता है वो नहीं मिलता है तो क्या आता है? मान लीजिए आपको कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा है, एक बच्चा को खिलौना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या करता है बच्चा? एंगर, चिल्लाता है। चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है, हमको दो। एंगर प्रभु। इवन आप बच्चा में देख सकते हैं ये चीज बड़े होके नहीं आता ये चीज। अभी आप इस समझ में आता है कि पूर्व जन्म से कैसे आता है। एक बच्चा जो 3 साल 4 साल का है, उसको अभी देखिए 3 4 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल देते हैं, उससे मोबाइल छीन लीजिए, देखिए याद दिला देगा कि वो आपका बाप है, आप उसके बाप नहीं है, और फिर आपको मोबाइल देना ही पड़ेगा। तो तो एक बच्चा भी इस फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड होता है, क्योंकि उसके पिछले लाइफ टाइम में वो यही करके है ना। तो फिर एंगर आता है, और एंगर से होता है क्या? स्मृति विभ्रम। क्या बोलते हैं? विनाश काल है विपरीत बुद्धि। क्या कोई एग्जांपल दे सकता है इसका, जिन्होंने विनाश काल है विपरीत बुद्धि? गुस्सा आया, कोई स्क्रिप्चर से कोई एग्जांपल दे सकता है? रामायण में प्रभु रावण कैसे रावण जी, राम गुस्सा आया, उसको पता ही, इतना विद्वान था भाई, पढ़ा लिखा ब्राह्मण, कितना विद्वान, तीनों लोक में सबसे बड़ा ज्ञानी। बताइए, ज्ञानी लोग का भी प्रॉब्लम है, ना ज्ञानी काम करेगा ना कर्मी काम करेगा। हम लोग को भक्ति बनना पड़ेगा। बताइए, गुस्सा से उसका माथा घूम गया, सीता माता को, जो उसकी माता है उसी को भोग करने का इच्छा किया। फिर क्या हुआ? फिर वो स्मृति विभ्रम के बाद होता है बिविल्डरमेंट। फिर उसको समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है, ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, और उसके बाद वो अपने स्तर से गिर जाता है। तो ये है लास्ट, गिर जाना। उसको मानव शरीर प्राप्त हुआ है और वो स्तर से गिर गया। ये सारा चीज स्टार्ट होता है एक चीज से, ध्यायतो। प्लीज प्लीज प्लीज, इस श्लोक से बस एक चीज आप ले सकते हैं, ध्यायत। और इसमें एग्जाम्पल भी देखिए क्या क्या दिया गया है। मतलब कोई ऐसा वैसा एग्जाम्पल नहीं दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इधर मटेरियल वर्ल्ड का कोई एग्जाम्पल, यहाँ है जो पृथ्वी में के अंदर में जो वो लोग का एग्जाम्पल नहीं दिया गया। लॉर्ड शिवा मतलब डेमी गॉड्स के वन ऑफ द डेमी गॉड्स में सर्वश्रेष्ठ लॉर्ड शिवा का एग्जाम्पल दिया गया है। He was get bewildered by his own wife Parvati, and Prabhupada लिख रहे इसको, and due to that Kartikeya was born. And same जब लॉर्ड शिवा के सामने मोहिनी मूर्ति आई थी, भगवान कृष्ण स्वयं आए, तो भगवान शिव उनसे मोहित हो गए, उनके पीछे and he discharged. So actually it is not his position. He is just doing to show us that देखो मैं, मतलब वो उन रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पे ब्राह्मण रहते थे, जो वेद हवन यज्ञ करते थे, वो लोग को दिखा, उन लोग के बीच से जा रहे थे। लॉर्ड शिवा जब मोहिनी मूर्ति के पीछे, उन लोग को दिखाना चाह रहे थे, देखो मैं अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख सकता,
तुम लोग कैसे रख सकते हो, दिखा रहे हैं लॉर्ड शिवा, बस इट इज नॉट हिज पोजीशन, ही इज वैष्णवा नाम यथा संभव है ना बोला जाता, तो वो दिखा रहे हैं। लोग बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं ना, अरे कोई बड़ा आदमी कुछ करता है तब हम लोग उसको फॉलो करते हैं, बड़ा आदमी के पीछे पूरा दुनिया जाता है, इसीलिए भगवान भी वैसे ही दिखा रहे हैं और शिवा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, देखो आई गेट bewildered, so you be very careful. And at the same time परपोट में किसका जिक्र किया गया है, कोई बोल सकता है, सेकंड पर्सन कौन है? बताइए राहुल ब्रो, सेकंड पर्सन का कौन, की सेकंड एंटिटी कौन है जो इस परपोट ब्रह्मा जी का है ना, परपोट में? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा। नो लॉर्ड ब्रह्मा इज देयर, हाँ हरिदास ठाकुर, ओके हाँ हरिदास ठाकुर का था। अभी हरिदास ठाकुर का उम्र है 20-24 और उसको उसकी प्रसिद्धि को देख के वहाँ के राजा उनसे खुश नहीं, तो उनके लिए भेज दिया एक वैश्या प्रोस्टिट्यूट। When he thought that I will make Haridas Thakur down in the society, he sends a prostitute to Haridas Thakur. अब क्या होगा? अभी देखिए सेंस जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे समोसा का सुगंध ये सब, तो सेंसेस को कहीं और एंगेजमेंट देने का, ये बात क्यों सत्य है प्रभुपाद जी बता रहे, हरिदास ठाकुर को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हरिदास ठाकुर वॉज नॉट अफेक्टेड। अब बता सकते क्यों, रीजन दीजिए, बताइए आशीष प्रभु क्या हो सकता है रीजन? हरिदास ठाकुर देखिए वो माया देवी थी स्वयं, माया देवी स्वयं केम टू टेक टेस्ट, वहां पे पार्वती देवी से शिव जी बिल्डर हो, लेकिन हरिदास ठाकुर व्हाट इज द रीजन? आशीष प्रभु वो इंगेज रखते थे अपने सेंसेस को, कहाँ रखे थे? हम लोग भी इंगेज रख सकते हैं, जब में, कहाँ? जब में हाँ भगवान के स्नान का, भगवान की सेवा में इंगेज रखे थे, ठीक है। सुप्रतीक प्रभु हरिदास ठाकुर क्यों बचे? ये पास किए, इस टेस्ट को पास करके दिखाए, बताइए। हाँ प्रभु, हरिदास ठाकुर तो हर टाइम भगवान का नाम का जप करते थे, इसीलिए उसके अंदर एक माने इसीलिए वो एंगेजमेंट के लिए उसके अंदर वो वाला जो ये है उसके अंदर नहीं गया। ठीक है, ये भी आप सेम। और किसी कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है आशीष प्रो और सुप्रतीक प्रो से, हरिदास ठाकुर क्यों बचे रहे? राहुल प्रो बताइए। हाँ प्रभु उनको बोला, जो मतलब वैसे थी, उनको बोला आप वेट कीजिए, ठीक है, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। ओके मेरा 3 लाख माला जो है वो जप नहीं हुआ अभी, अच्छा ठीक है, इंतजार कीजिए। ठीक है, बस ये इंतजार उनको मतलब 3 दिन तक चलता रहा ऐसा, ठीक है। तो वो जो माता जी थी मतलब वैसे उनको उनका जो मतलब हरिदास ठाकुर का जो वो देखिए ऐसा मतलब इंटेंशन मतलब भगवान के प्रति, उससे वो शुद्ध हो गई। ओके तो जो ये वेटिंग करवाए, अच्छा। उनको समय दिलवाए, अच्छा मतलब पोस्टपोन ये कर चीज- दिया, मतलब ये वन ऑफ जी। द आपका जो पॉइंट है। अभी नहीं, बाद में। हाँ आपका जी, है, अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद में करते हैं। हाँ। आपका पॉइंट है। आशीष प्रभु बोले कि भगवान की सेवा में इंगेज, सुप्रतीक प्रभु भी कुछ पॉइंट उसी के अराउंड बोले, और आप बोले कि बोलो करेंगे लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, बाद में करेंगे। चलो हाँ। ठीक है, इसको माइंड को घुमाना है, इसके साथ एक गेम खेलना है। ठीक जो है। ठीक है, अभी रुक जाइए, मैं करूंगा, ठीक है, थोड़ा देर के बाद। हाँ कोई और ऐसा। किसी और का कुछ और मत गंतव्य शॉर्ट में बोलिए, थोड़ा ज्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा नहीं। नीतीश प्रभु बोलना चाहिए कुछ? तो हरिदास ठाकुर जो है ना प्योर शुद्ध भक्त है भगवान, ओके ओके, उसीलिए उनके अंदर ना तो काम क्रोध, इतना नाम जाप करते थे, तो वो सब तो था ही ना, उनको पता चल गया था जो उनका टेस्ट ले रहा है। अच्छा आपका पॉइंट है बिकॉज ही हैज टेकन सो मेनी होली प्योर भक्त सब नहीं पड़ता है। ओके, मतलब प्योर डिवोटीज को, प्योर डिवोटीज वो 6 अर्ज, वो जो 6 काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, वो लोग शरणागत भी है और भगवान के शरणागत हैं, वो प्योर शुद्ध हैं। ओके ओके, अच्छा पॉइंट है। प्रीतम प्रभु आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर शिवम प्रभु या अमित प्रभु किसी का कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू इनसे हटके, इन चारों से? प्रभु एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि हरिदास ठाकुर इतना ज्यादा भगवान के सेवा में लीन थे और उनका जो थॉट था
जो हम लोग का थॉट नहीं हो पाता है जनरली, उनका जो थॉट था कि आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मतलब मैं दासानुदास हूँ, मतलब इतना गिरा हुआ हूँ, इतना पतित हूँ, तो मैं कैसे किसी चीज का भोग कर सकता हूँ, हाँ अच्छा। जैसे ऐसा एक थॉट था। तो ये एक मेरा पॉइंट। हाँ मतलब ऐसा सोचना कि ये इसको हम कैसे भोग कर सकते हैं, मेरा वो पोजीशन ही नहीं है भोग करने का, मतलब ये तो भगवान के भोग करने की वस्तु है, मेरे भोग करने। हाँ अच्छा पॉइंट है। और किसी का कोई अलग पॉइंट, बहुत सारा अच्छा अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है, बोलिए कोई और, कोई कुछ बोलना, कोई अलग बोलना चाहेंगे? अच्छा ठीक है। अभी मेरा पॉइंट आता है हरिदास ठाकुर, तो ठीक है, ही इज चैंटिंग द प्योर होली नेम, ही इज टेलिंग दैट बाद में करता हूँ, ही इज प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सो दैट ही डिफीटेड माया देवी एंड मेक हर डिवोटी ओनली, डिवोटी बने। प्रभुपाद जी बता रहे इजिली पास, क्या लिखते प्रभुपाद, इनकारनेशन ऑफ माया, बट हरिदास ठाकुर इजिली पास द टेस्ट बिकॉज ऑफ द अनअलॉयड डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तब क्या हम लोग हरिदास ठाकुर बन सकते हैं? अब हम लोग को अभी देखिए प्रैक्टिकल में आते कि हम लोग को बचना है ना, क्या अब हम लोग हरिदास ठाकुर बन सकते हैं क्या, बताइए? नो। बन सकते हैं क्या? नहीं। उनको प्रभु कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास मतलब नहीं कर सकते, लेकिन जिस पथ वो हम लोग को, जो पथ जो रास्ता दिए हैं, उस रास्ते पे हम लोग चल सकते हैं। तो ठीक है। कि जैसे अब हरिदास ठाकुर जस्ट मतलब वन प्रसाद लेते थे वन टाइम, तो वैसा तो हम लोग करेंगे तो नीतीश प्रभु ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को ऐसा है कि मतलब जो मिनिमम राउंड जो श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं, मिनिमम 16 राउंड, मिनिमम 4 रेक्स, और ये घोर कलयुग है, उस समय हम लोग इतना भी करेंगे तो हम लोग उस पोजीशन पे उस उनके सर्वेंट बन सकते हैं। अभी ऐसा अभी देखिए प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोल रहे थे इसी श्लोक में, अमेरिकन जो थे उस टाइम मीट ईटर्स थे, अमेरिकन और मीट ईटर्स दैट टाइम, एंड प्रभुपाद गेव हिम इस्कॉन बॉल्स एंड दे लीव मीट ईटिंग एंड दे स्टार्ट टू मेक इस्कॉन बॉल्स। यू नो इस्कॉन बॉल्स क्या है? यस प्रभु, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। इट्स वेरी पावरफुल एंड दे गेव अप। श्लोक आता है इस्कॉन बुलेट्स प्रभु। ISKCON balls. Prabhupada mentioned ISKCON balls. Yes, ISKCON bullets you can also tell. Prabhupada mentioned this explicit word ISKCON balls. So they leave meat eating. Americans. That means if you give something higher taste to the senses, you will not have the taste for the lower senses. Sense gratification होती है. Even lower क्यों बोल रहा हूँ? Lower इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ रखा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इट इज टेम्पोररी। आपको कोई अनंत सुख नहीं दे सकता कुछ। अनंत सुख तो वही दे सकता है जिसके पास अनंत सुख है, दैट इज कृष्णा ओनली, ही कैन गिव यू। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लास्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो मतलब हरिदास ठाकुर हम लोग बन नहीं सकते, और भगवान भगवद गीता में ये भी बोले सततम कीर्तन, तो हम लोग सततम तो नहीं कर सकते। ठीक है, 16 माला का जप करना हमारे हाथ में, जो प्रभुपाद जी हमारे आचार्यगण बताए। तो आचार्यों के दिए गए निर्देश को पालन करने से और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से आप अपने इंद्रियों पे नियंत्रण पा सकते हैं। ये है सॉल्यूशन। एक प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना के माध्यम से आप अपने इंद्रियों को विजय कर सकते हैं, और ऐसा बहुत लोगों ने किया है और कर रहे हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं, वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस ही कैन ओनली कंट्रोल हिज सेंसेस, अदरवाइज ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड और डेविएटेड बाय मटेरियल वर्ल्ड। सिंपली कुछ नहीं, कृष्णा कॉन्शियस, उसमें क्या करना है? 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और श्रवण कीर्तन। श्रवण करना है, बुक रीडिंग करना है। तो ये जो श्लोक था जो आपको बता रहा था, जो आपकी इंद्रियां, जिसको जो आपके मृत्यु का कारण है, जिसपे जो इंद्रिया जो आपको सोचने पे व्यस्त करता है, आपकी एक एक इंद्रिय में बहुत शक्ति है, और हर एक इंद्रिय का अलग अलग वस्तु है भोग करने का। अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग चीज़ों में लगाइए। एक और श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद कैसे हम लोग आँख से भगवान के सुंदर विग्रह को देख सकते हैं।
हाथ से भगवान के लिए सुंदर प्रसाद बना सकते हैं, अपने पैरों से भगवान के लिए नाच सकते हैं। आप लोग अपने अपने मेस में हो गए, अपने अपने होटल में हो गए, फिर मंदिर में से दूर हो गए, अपने अपने हॉस्टल में हो गए, अपने अपने एक रूम में हो गए, वहां पे कैसे इंद्रियों को सेवा में लगा सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं। लिख के रखिए अपने सामने जो दीवार, उस पर नोट बना के रखिए कि जब आप सुबह, क्योंकि हम लोग डेली भूल जाते हैं ना चीज़ों को। आप लोगों को क्लास में डिस्कशन हो रहा है, आप लोग कल भूल जाएंगे इस चीज़ को, तो आप लिख के बना सकते हैं। ये मेरे आँखों के लिए जो है ना, भगवान के विग्रह को देखना है जो है एक इम्पोर्टेंट कार्य है। इसे लिख के रखिए, इंग्लिश में लिख के रखिए, शॉर्ट कीवर्ड लिख के रखिए। जब आप उठेंगे ना पहला चीज़ वही देखेंगे, तो आपको पहले आँख जाएगा आपके रूम में। अगर आप लोग तो डिवोटी है, तो आप लोग रूम में कहीं ना कहीं ज़रूर भगवान का फोटो लगा के रखे ही होंगे। उठते ही आपका ध्यान अगर उस नोट्स पे जाए, तो पहले तो देखेंगे भगवान का विग्रह। आपका जो पहला है तो दिन ही सफल हो जाएगा, कि आप अपने स्टार्टिंग किए डे भगवान के विग्रह को दें। फिर आप जप करेंगे, फिर अपने मुख से कीर्तन कर सकते हैं। हम लोग को आदत हो जाता है, बॉलीवुड सॉन्ग सुनता है 20 साल से, तब तो मन में आ जाता है कि भैया तेरे खारे खारे नैना, और क्या क्या बॉलीवुड का सॉन्ग है, कभी कभी आ जाता है। कीर्तन का आदत डालिए, कीर्तन सुनिए कानों से, और स्मेल भगवान के सुंदर पुष्पों का स्मेल। आप वीकेंड पे मंदिर जाइए कभी। अभी हम कहाँ पे है? स्कॉन त्रिवेंद्रम मंदिर से क्लास दे रहे हैं, मंदिर में अभी हम यहाँ आश्रम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो विजिट कीजिए जब भी पॉसिबल हो, 1 घंटे के लिए भी जाइएगा, आपका पूरा वीक जो है सर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग भगवान के सेवा में। अच्छा, आप पैर से नाच सकते हैं भगवान के लिए, भगवान के तरफ जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, अपने पैरों को भी सेवा में लगा सकते, सब कुछ सेवा में लगा सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आया बात, इसमें हम भूल गए थे। तब क्या बात आता है कि अपने इंद्रियों को तो बताया भैया, ठीक है ये सब करना चाहिए, तो फिर बात आता है कि ब्रह्मचारी लोग जो फिर, या फिर भक्त लोग जो बड़े बड़े चीज़ों को यूज़ करते हैं, कार या फिर एरो फ्लाइट से जाते हैं, लैपटॉप्स, तो क्या ये गलत है क्या? इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं की। मतलब इसका एक सॉल्यूशन क्या है? तब अब इंद्रियों को तो लगाना है, मतलब कर सकते हैं, मतलब बोला गया कर सकते हैं, लेकिन सोचना नहीं। तो क्या ऐसे फ्लाइट में जाना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, लैपटॉप यूज़ करना, क्या ये सही है भक्तों के लिए? तो क्या नहीं करे बताइए? कोई बोल सकता है इसमें? एक वर्ड का आंसर है, आप लोगों को भी पता है, मतलब आप लोग जानते होंगे मोस्टली। हम बस एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं इसमें, एक टर्म। कोई बोलेगा क्या ये सही है कि गलत? हाँ या ना? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। प्र- प्रभु वो सब तो माने भगवान के सेवा में भी वो लोग लगा रहा है। ठीक है, भगवान की सेवा में। लैपटॉप जो है भगवान का क्लास लेने के लिए यूज हो रहा है, और कार से भगवान का टेम्पल जाने के लिए यूज कर रहा है। हाँ, तो एक बार राधे श्याम प्रभु जा रहे थे सीढ़ियों से अपने यंग एज में। प्रभु बोले, उनके जो प्रभु थे, आओ लिफ्ट में आओ राधे श्याम। तो नहीं नहीं, आई एम यंग, आई विल गो विथ स्टेयर। वो बोले कि व्हेन यू गो विद द लिफ्ट यू विल सेव 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड तो क्या हुआ, उसमें तुम भगवान की ज़्यादा सेवा कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। उनको कुछ नया वर्ड टर्म सीखने को मिला, वियुक्त वैराग्य। मतलब आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, आप पता है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि वो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। सब यूज़ करिए, कार यूज़ कीजिए, आप फ्लाइट यूज़ कीजिए। आप देखिए, हम लोग का सोच इतना गंदा है कि हम लोग देख के लगता है कि वो इंजॉय कर रहा है, उसको यूज़ करके enjoy। हम लोग देखते हैं ना, बहुत बार देखे, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना, फ्लाइट में जाना, या फिर आईफोन यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, बहुत बार देखे। तो हम लोग के मन में कहीं ना कहीं विचार आता है कि नहीं, अगर वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, ये सही है, ये शास्त्रों का प्रमाण है, शास्त्रों का दिशा निर्देश है, युक्त वैराग्य। तो हम लोग भी एज अ स्टूडेंट, एज अ एम्प्लॉय, एज अ गृहस्थ, अगर किसी का शादी भी हो गया पता नहीं, तो वो लोग युक्त वैराग्य का पालन कर सकते। बहुत सिंपल स्टेप्स है, क्या करना है, जो करना है भगवान के सेवा के लिए करना। तो अब ये सब तो ठीक है, थ्योरी हो गया प्रभु, जितना भी आप बताए भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना है, अपनी सेवा में नहीं लगाना है, नहीं तो हम लोग के दुख का कारण बनेगा, गुस्सा आएगा। सॉल्यूशन है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन करना, बुक रीडिंग एंड हियरिंग। ये आपका शील है, जो अशेषानंद लोग प्रीवियस क्लास में बता रहे थे कि इस अवस्था में आके लगता है कि सबसे सफल हो गए हम लोग, यही बोल रहे थे ना पिछले क्लास में। और यहाँ आके लगता है कि क्या आप सफल हो गए? आप लोग बता रहे थे हाँ, कुछ कुछ पॉइंट बता, कुछ सफल हो गए, कुछ खुशी मिला तो थोड़ा मिला, कोई कोई बोल रहा था थोड़ा मिला, फिर नहीं मिला। तो
उस क्लास का भी निष्कर्ष यही था कि खुशी जो है वो इन सब चीज़ों में नहीं है, इसमें हम लोग ढूंढने का प्रयास करें। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लाके युक्त वैराग्य का पालन करने के माध्यम से आप इस श्लोक को विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से आप अपने इंद्रियों को, जैसा लिखा है, बचा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग देखिए, हम लोग अभी साथ में अलग अलग देश के अलग अलग कोने में हैं, तो हम लोग एक दूसरे को उत्साह प्रदान कर सकते हैं। हम लोग जो काउंसलर है हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, हम लोग के लिए क्लास, उनका एक एक मिनट कितना कीमती है, उसके बावजूद हम लोग जो उनसे दूर है, जिनसे उनका कोई लाभ भी नहीं है, आप लोग है ना, हम लोग इतना दूर है, क्या ज़रूरत है उनको क्लास देने का, लेकिन हम लोग के लिए प्रभु समय निकालते हैं, क्लास देते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा समझाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो उनके दिशा निर्देश के बिना कैसे होगा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि बी कनेक्टेड विथ योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, बी कनेक्टेड। अगर आप उनसे कनेक्शन बना के रखेंगे तब आपका इंद्रिय आपसे, आपके माइंड के कंट्रोल में आएगा। कैसे? इंद्रिय के ऊपर होता है मन, मन के ऊपर होता है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर होता है आत्मा, और आत्मा जो है कैरी करता है पिछले जन्म के पाप कर्मों को। आत्मा जो कैरियर होता है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब आत्मा जाता है तो अपने पाप कर्मों के जो छाप है, छाप उसको लेके दूसरे बॉडी में घुसता है। तो पाप कर्मों के छाप के कारण हम लोग को जो पाप कार्य अच्छा लगता है। हम लोग को पाप कार्य क्यों अच्छा लगता है? जैसे मान लीजिए आप ब्लू ग्लास पहने तो आपको दुनिया कैसा दिखेगा, बताइए कैसा दिखेगा? राहुल ब्रो कैसा दिखेगा? आशीष ब्रो बताइए। ब्लू में ब्लू दिखेगा। ब्लू दिखेगा। तो हम लोग के बुद्धि में तो पाप है ना, पाप का छाप पड़ा हुआ है। तो जब हम लोग मन है, मन में पाप का छाप है, मन से किसी चीज को देखेंगे, मन आंख को इंस्ट्रक्शन देगा और देखेगा, है ना, माइंड इंस्ट्रक्शन ताई को देखने के लिए। तो मन ही दूषित है, तो किसी चीज को देखेंगे तो क्या होगा, उस चीज में हम लोग इम्प्योरिटी या फिर इम्प्योरिटी के पीछे अट्रैक्ट होगा। कौन सा इम्प्योर चीज है उसको देखने में मन जो है अपने आप को लगाएगा। तो जो दूषित मन है वो दूषित वस्तुओं के पीछे आकर्षित होता है। लेकिन जब आप जप करते हैं तो वो दूषित मन जो है साफ हो जाता है, तब आपका अट्रैक्शन जो है उससे चेंज हो जाता है। मतलब आप अपना गियर बदल दिए, यानी कि जप करने के माध्यम से आप इजीली इसको पार कर सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग डेली 16 बनाइए। और हम बोल रहे थे कि हम लोग बाहर है, प्रभु हम लोग क्लास दे रहे हैं, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने साधना को करें और साधना रिपोर्ट ग्रुप में भेजें। ठीक है, मैं चाहता हूँ मतलब आप लोग अगर साधना रिपोर्ट भेजेंगे तो हम लोग एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं। जैसे कल राहुल प्रभु भेजे थे, सबको ही भेजिए, जितना भी माला हो रहा है। 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करने में क्या होता है? अगर आप ये मनुष्य जीवन में इसको पूरे जीवन के, तो प्रभुपाद अश्योर करते हैं, इफ वन चैंट 16,004x आई विल टेक बैक यू टू गॉड हेड। क्या चाहिए और? प्रभुपाद जी लिख के दे रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए? सो इट्स माई रिक्वेस्ट। ओके, सो ये डिस्कशन कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग प्रश्न लिख के रखिए। मैं प्रश्न का उत्तर देने में सामर्थ्य तो नहीं हूँ। आप लोग के अगर प्रश्न है तो आप लोग उनको भेज दीजिए, मैं प्रभु से डिस्कस करके आप लोग का आंसर जो है पर्सनली भेज दूंगा। ठीक, अगर कोई इसमें प्रश्न है, जितना भी डिस्कशन हुआ अगर है तो कैसा लगा डिस्कशन? है प्रभु है। ठीक है, थोड़ा देर रुक जाइए, देते हैं। आप लिख सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो नहीं डायरेक्ट अभी 1 to 1 करना पड़ेगा प्रभु। वो भी चलेगा, लेकिन अभी एक्चुअली हमको निकलना है यहाँ से, 12 बज गया है, लेट हो जाएगा वहाँ जाने में। तो आप लोग ये डिस्कशन कैसा लगा? आप लोग एक बार कैमरा में आ जाइए, लास्ट में कैमरा में आ जाइए। नीतीश प्रभु, प्रीतम प्रभु, राहुल प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। सुप्रतीक प्रभु आ जाइए। हाँ, प्रीतम प्रभु कहाँ है? कैमरा में, प्लीज कम इन कैमरा। अमित प्रभु ऑन करिए आईपैड का कैमरा। प्रीतम प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसा लगा डिस्कशन आप लोगों को? जो भी हुआ प्रभु के कृपा से जो मैंने बोल पाया हूँ, जो भी सुना हूँ वही बोला। मतलब एज अ रिकॉर्डर जो होता है ना, रिकॉर्डर गुरु का, आई एम रिकॉर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल गाइड, वैसा तो बोल दिया। वाह, थैंक यू, बढ़िया। अमित प्रभु थोड़ा क्या ही बना लिए हैं मतलब।
ठीक है, तो गुरु महाराज कोलकाता क्या है। ओलिया बना लिया आज पाप मोचनी एकादशी है, ठीक है। सो आप लोग ज्यादा ज्यादा माला जप करिए आज, ठीक है। आज म्यूट है अमित ब्रो, कुछ बोल रहे हैं क्या? और आज गुरु आज हाँ एकादशी है ना, इसीलिए सेविंग नहीं किए, नहीं तो कर ही लेते और हैं। गुरु महाराज आज कोलकाता भी आए हुए हैं, तो हमारे भक्त लोग जो उधर गरिया में लोग को सेवा मिला। एकादशी के दिन गुरु महाराज से सुनना, आज बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है, जिसमें भक्ति विघ्ननाशक नरसिंह स्वामी महाराज, भक्ति डी दामोदर स्वामी महाराज, इवन गुरु महाराज। मतलब हमको लग रहा है कि क्या मिस कर दिए हम, क्या होगा। मतलब एक से एक गुरु जो वन ऑफ द एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। भक्ति डी दामोदर स्वामी महाराज क्या एग्जाम्पल है, गुरु महाराज क्या एग्जाम्पल है, विघ्ननाशक नरसिंह चाइना में प्रीचिंग करते क्या एग्जाम्पल। जब ऐसा एग्जाम्पल प्रेजेंट है तो हम लोग को क्या असुविधा है। अरे देखिए, फॉलो करिए, है ना। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप नेक्स्ट तो वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा क्या वो? शायद मिल सकता है आप लोग, अगर मिलेगा तो हम ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो फिर ऑनलाइन अवेलेबल होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल होगा। वो यूट्यूब पे शायद इस्कॉन कोलकाता से लाइव होगा आई थिंक। तो अगर देखते हैं। अगर कुछ क्या बोलते हैं, अगर आप लोग कुछ कमेंट्स क्या बोलते हैं, कुछ मेरे इसको सुधारा जा सके, जैसे हम बोले कुछ कमेंट्स रिप्लाई कुछ बोल सकते हैं तो बताइए, कुछ बोल सकते हैं तो हम अपने आप को उसमें उस फील्ड में सुधार सकते हैं। अगर कुछ करेक्शंस या फिर कुछ करेक्शन सजेशंस हो सकता है जिससे नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो। किसी का भी है, कुछ भी बोल सकते ब्रो अच्छा हुआ क्लास ब्रो। अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा था। ओके। प्रीत राहुल ब्रो, कोई करेक्शन, कोई सजेशन, कुछ जेन्युइनली बोलिए। देखिए सजेशन भी नहीं, बहुत अच्छा जेन्युइनली बोलिएगा। देखिए क्लास देने के लिए। देखिए हम आप में से एक है, अगर आप लोग जेन्युइनली कुछ बोलिएगा, अगर नहीं अच्छा भी लगा तो मतलब ये बेटर होगा, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लगा तो नेक्स्ट संडे आप लोग ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। अब